Let's begin the chapter Poets and Pancakes. That day I had already shared with you कि ये जो poets and pancakes है, this is the recount of Ashoka Mitran, and this is from his book My Years with Boss. ये एक बार आया था, means जो कोविड वाला टाइम था ना, उस वक्त में this question was there कि which book it was, because उस वक्त we had two kinds of exam. One was completely objective, so this was there कि उसका उस book का नाम क्या था, My Years with Boss. And what is the main theme of this chapter is the influence of movies on every aspect of life in India. This Gemini Studio बहुत famous studio है. In fact, if we as a personal account में देखेंगे, तो most of the beautiful movies have been made here. उनकी जो वो बिगुल होता था ना, दो छोटे छोटे से बच्चे, when they started use they used to, that was AVM and Gemini's are very renowned. बीच में it was in fact उनको जो है हटा दिया गया था, but again now it has been there. The Gemini studio is located in Chennai and which was set up in 1940. And it is one of the influential film producing organization. और इसके जो फाउंडर हैं वो है SS वासन. ये आपका मतलब कि दिस इज फ्रॉम योर क्वेश्चन. And the duty of Ashoka Mitran was to cut out. This has come in the exam also. ये आगे भी है. This is also there. अभी further में भी है. The newspaper clipping on wide variety of subjects and store them in files. Storage मतलब कि हम बोलते हैं. It was performed an insignificant function. He was the most well informed of all the members of Gemini family. और ये उसी का एक excerpt है. So we don't need to understand other things. Basically, Gemini Studio कहाँ located था? Setup की कोई जरूरत नहीं है. Secondly, what was the narrator's work? पेपर में भी आया था. The very first, ये जो पहला हमारा है, इसमें जो टोन है, the tone of it is humorous, sarcastic, irony, means in your exam if the MCQ comes कि what is the tone, अगर इसमें से टोन आपका RTC आता है और टोन आता है तो this is somewhat मजाक उड़ाते हैं. मतलब that is sarcastic, the words can be different, right? Pancake was the brand name of the makeup department, makeup material in Gemini Studios, bought in truckloads. That day I told you that this truckload is actually metaphor. It means there was ये जो makeup material होता था, this used to come in large quantity. And what is Pancake? It is a brand name and it is basically the concealer which is used before makeup. Miss Gauhar, a very famous actress, must have used it. Vaijayanti Mala must have used it. If you know, she is a famous dancer and of course, a movie actress. But Rati Agnihotri may not have even heard of it. As I said, Rati Agnihotri was a later heroine. ये आई थी आपकी around 1970s में. The makeup, what he means to say through these lines is कि now pancakes are not used. इसका मतलब है कि अब ये यूज नहीं होता है. It was all in the earlier times. The makeup department of Gemini Studio. अब ये जो question है, what is the question? Where was the makeup department of Gemini Studio situated? The makeup department of Gemini Studio was in the upstairs of a building that was believed to be Robert Clive's stables. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. For his brief life and even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving. Besides fighting some impossible battles,
in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary Church in Fort St. George in Madras. मतलब वो यहाँ पर जो है रॉबर्ट क्लाइव का मजाक उड़ा रहा है कि लगता है अपने छोटे से जर्नी, मतलब इन इंडिया उन्होंने शायद काफी घूमे हैं वो, और वो भी काफी लड़ाइयां भी लड़ी हैं, और यहाँ पर ही हैड मैरिड वन ऑफ द मेडन इन सेंट मैरी। ये जो फोर्ट है, अगेन दिस इज देयर इन चेन्नई, इट्स अ मेन पोर्ट, वहां का मेन पोर्ट है ये फोर्ट। नाउ comes the question which you can expect in the exam. This is the question. What does the writer mean by the fiery misery of those subjected to makeup? इसका आंसर आपका यहां से स्टार्ट होता है। The makeup room had the look of a hair cutting salon with lights of all angles, around half a dozen large mirrors. They were all incandescent lights. So you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. उसका कहने का मतलब है कि इतनी गर्मी होती थी, चारों तरफ मिरर होगा, उसके अलावा लाइट्स होंगे, एज आई टोल्ड यू इनकैंडेसेंट लाइट्स होते हैं जिनके फिलामेंट्स जो है वो बुझते नहीं है। सो इट वॉज टू हीट, दैट इज वाई ही हैज यूज दिस फायरी माइजरी जो यूज किया है, दिस हैज बीन यूज फॉर द हीट, गर्मी के लिए। एंड माइजरी इज ट्रबल, इट इज द ट्रबल, मतलब कितना सोचो कि उनको कितनी परेशानियां झेलनी होती हैं। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट, अब ये जो है सेकेंड क्वेश्चन है, नीचे उसी में आपके दिया हुआ है इन टेक्स्ट में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटेग्रिटी दैट द ऑथर रेफर्स टू? एंड दिस क्वेश्चन हैज डायरेक्टली कम इन दिस वे ऑल्सो कि जेमिनी स्टूडियो वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटेग्रिटी। तो उसका कहने का मतलब है कि इट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली, देन सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन, देन देयर वॉज अ धारवाड़ कन्नडिगा, एंड आंध्रा, मेड्रास इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज एंड यूजुअल लोकल तमिल्स। मतलब अलग अलग लोग उस जमाने 40s 50s में to move from your state to another state was really a very big task. It was next to impossible, I can say. लेकिन उस वक्त में भी वहां पर जो मेकअप आर्टिस्ट रहे हैं, they had come from across India. That is why he has said that it is a perfect example. आगे, all this shows that this great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs and national integration. दिस इज एक्चुअली ही सेइंग इन अ ह्यूमरस वे, वो अपना टोन जो है वो मजाक में कह रहा है कि भाई जो ऑल इंडिया रेडियो था या फिर आपका दूरदर्शन था जिसमें नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड, नेशनल इंटीग्रेशन मतलब नॉट पेट्रियोटिक सॉन्ग, दोज डेज वो जो मूवीज होती थी या फिर आपके गाने होते थे, कैसे होते थे? लाइक इन द मॉर्निंग अराउंड 6:30 इट विल स्टार्ट radio. First of all, I'll tell about the radio, All India Radio, and it will start around 6 o'clock. And then there would be songs related to bhajans, there would be songs related to raga, मतलब ये किस राग पर बेस्ड है, उससे मूवीज के ही सॉन्ग होंगे लेकिन राग। then there would be news, then there would be हिंदी सॉन्ग्स न्यू, देन आपका आता था आई थिंक 9 o'clock अनुरोध आता था, 9:30 आई थिंक संगम आता था, उसके बाद बंद। देन आपका 3 बजे स्टार्ट होता था, इट वुड स्टार्ट विथ लोक संगीत, एंड दिस लोक संगीत फोक सॉन्ग जो थे दे यूज टू बी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। देन दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन। देन अराउंड देन 4 o'clock से 5 o'clock देयर वुड बी 1 hour, और उसके अंदर देयर वुड बी 5 लैंग्वेजेस जिसके आपके मूवी सॉन्ग्स होते थे। बेसिकली दैट वाज तमिल, मलयालम, हिंदी, कन्नड़ा, ये वाले होते। तो दैट वाज देन, तो इस तरीके से दे यूज टू हैव डिफरेंट आपके जो स्टेट्स है उनको वो उसके अंदर लेकर आते। नाउ फॉर दूरदर्शन, फॉर the 6 days there would be different programs, and these programs would come only on the dedicated designated time, not always, हमेशा नहीं आते थे।
Then Saturdays and Sundays used to be, for us it was a fun because आपके Saturday Sunday को ही आपके regional movies आती, and there used to be a regional channel जिसको हम DD2 बोलते थे उस समय. अब तो मतलब कि there are all the things have been changed. तो दूरदर्शन and AIR are the perfect example of national integration. उनका कहने का मतलब है उससे भी ज्यादा आपके जेमिनी स्टूडियो में उससे भी पहले ही लोग अलग अलग स्टेट से they had been there. The gang of national integrated makeup men could turn any decent looking person into hideous crimson hued monster. मतलब what does it mean? It's a metaphor, and what he means कि कोई इंसान जो देखने में बिल्कुल भोला भाला है उसको एकदम crimson means red colored. Crimson is red colored. बिल्कुल राक्षस बना देते थे with the help of truckloads of pancakes and a number of other locally made potions and lotions. Potions and lotions refer to the makeup materials. मतलब साथ में जो those who were the days of mainly indoor shooting. उस दिन ये आपको मैंने बताया था only बहुत कम आपके होते थे जिसमें outdoor shooting होती थी. And those were specific means you can say सीन होता था या तो वो फाइनल वाला होगा एंड वाला या कोई क्राउड सॉन्ग होगा. उन दिनों में आपकी मूवीज में नॉर्मली कवाली होती थी उन उसमें जो है दे माइट गो फॉर द आउटडोर शूटिंग. I suppose, and only 5% of the film was shot outdoors. I suppose the sets and studio lights needed girls and boys to be made to look ugly. Now you can see this is oxymoron. This is oxymoron. How it is oxymoron? They required girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable. Both are opposite, ugly and presentable. मतलब मूवी के अंदर जो अच्छे अच्छे लोग होते थे उनको ढंग से पेश करने के लिए दे नीडेड मेकअप आर्टिस्ट. अ स्ट्रिक्ट, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, a strict hierarchy was maintained in the makeup department. I told you that day कि there used to be जो hierarchy होता था that was कि जो chief artist होगा he would be going with the main hero or heroine और उसके नीचे वाला जो है उसके जो assistants होते थे they would be going with the second one. उसी के जैसे the last जो होता था that would be the common people. वहां जो काम करते थे anyone who was working could be given this work. उसका कहने का मतलब है the chief makeup man made the chief actors and actress ugly. His senior assistant, second hero and heroine. The junior assistant, the main comedian, so forth. The players who played the crowd were the responsibility of office boy. यहां से आपका जो इस मतलब कि चैप्टर का सेकंड पोर्शन स्टार्ट हो जाता. Even the makeup department of the Gemini studio had an office boy. मतलब वहां पर भी ऑफिस बॉय होते थे. ऑफिस बॉय का मतलब होता है द वन हु वर्क्स इन द ऑफिस. On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel. यहाँ पर जो paint है, this is referred to the makeup. It is referred to the makeup material, not the painting. And स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर. स्लैपिंग का मतलब होता है उनके मुंह पे थोप देना. स्लैपिंग का मतलब होता है उनके मुंह पर थोप देना. स्लैपिंग का मतलब उसको थप्पड़ लगाना नहीं है. द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप. मतलब आपके चेहरे पे कोई भी दाग धब्बा है उसको छुपाने के लिए. He wasn't exactly a boy. He was in early 40s. He had entered the studio years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director, or lyric.
ही वॉज बिट ऑफ अ पोएट। मतलब वो बेचारा आया तो यहाँ पर किसके लिए था? ही हैड कम हियर टू मेक हिज करियर इन मूवीज, लेकिन वो बन के रह गया द ऑफिस बॉय। यहाँ पर वो क्या हो गया? ही हैड बिकम एन ऑफिस बॉय। दिस इज, यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका। दिस इज अ क्वेश्चन pertaining to this, and one more question is also there. In those days, I worked in a cubicle. While doing the summary, I had shown what is cubicle. यहाँ पर why the cubicle का एक इम्पोर्टेंस है क्लास 12। उनका कहने का मतलब है कि जो क्यूबिकल में प्रॉब्लम क्या आती है, when you are working in the cubicle, you are able to see every person who is sitting on another window। जैसे आपके बैंक वगैरह में होते हैं वैसे। आई डिड नॉट नो दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। Seeing me sitting at my desk, tearing up newspaper day in and day out, most people thought I was doing nothing। मतलब वो पेपर फाड़ता था तो उसको लगता था कि वो कुछ भी काम नहीं करता है। It is likely that the boss thought likewise too। So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture। तो उसको लगता था कि वो खाली बैठा रहता है, इसीलिए किसी को भी अगर कोई काम एक्स्ट्रा काम होता था, किसी को भी कोई एक्स्ट्रा काम होता था, तो वो लोग क्या करते थे? दे वुड डायरेक्टली कम टू दिस मैन, दैट इज अशोकमित्रन, और उसको काम पकड़ा देते थे। बार्ज इनटू मतलब घुस जाते थे और उसको काम पकड़ाते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग देवर ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। वाई दे डिड इट? बिकॉज ही वॉज नॉट डूइंग। सो द बॉय इन द, यहां पर वाई इट इज पुट इन इन्वर्टेड कॉमा, इट इज नॉट फॉर द बॉय, इट इज फॉर दैट मैन जिसको ऑफिस बॉय का डेजिग्नेशन दिया। Makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit for only barbers and perverts। मतलब और वो जो था ऑफिस बॉय, वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, ये आपका जो है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। आई विल बी राइटिंग द क्वेश्चन ऑल्सो फॉर यू। वो अपना सारा जो गुस्सा होता था वो आकर इस पर निकालता था, और वो कहता था कि उसके जैसा, मतलब ऑफिस बॉय के जैसा एक टैलेंटेड इंसान जो है, उसका सारा टैलेंट वेस्ट हो रहा था। जहां सिर्फ बार्बर्स, यहाँ पे ये जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, इनको उसने बोला है नाइयों के बीच में बैठकर उसके टैलेंट को वेस्ट किया जा रहा है। और जब भी वो आकर अपना फ्रस्ट्रेशन इस पर उतारता था, तो जो अशोकमित्रन है, I used to pray for crowd shooting all the time. Nothing short of it could save me from his epics। और वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि भैया मुझे क्राउड शूटिंग हो ताकि ये बिजी रहे। अब आपका जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, is it correct to direct your anger towards one single person? In all instances of frustration, you will always see the anger directed towards a single person, openly or covertly. And this man was convinced that all his woes, ignominy, and neglect were due to Kottamangalam Subbu। और उसका गुस्सा, उसका फ्रस्ट्रेशन किस पर निकलता था? सुब्बू पर निकलता था। आकर वो सुनाता किसको था? अशोकमित्रन को। और उसका गुस्सा किस पर निकलता था? सुब्बू पर। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका है, इज इट करेक्ट टू डायरेक्ट योर एंगर टुवर्ड्स वन सिंगल पर्सन? एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है क्लास 12, दैट नॉर्मली
जब हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं, यहां हम आपके मार्क्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंस्टेंट। तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज वी डोंट एक्सेप्ट आवर फ्लॉस, वी डोंट एक्सेप्ट आवर डेस्टिनी, we don't accept the situation, and we normally blame any other person who is an easy target. और ये मैं इसका आंसर बता रही हूं, एंड ये एक बहुत कॉमन चीज है। when we see someone better than us, तो हमारा जो नेक्स्ट होगा ना, वो ये नहीं होगा कि नहीं नहीं ही और शी इज बेटर देन अस। हमारा होगा कि भाई उसको तो मौका मिल गया है, उसको उसके पास तो पैसा है, उसके तो पेरेंट्स ने किया था। तो दिस इज अ वेरी कॉमन हमारा टेम्परामेंट, दैट वी नॉर्मली डायरेक्ट अवर एंगर टूवर्ड्स वन सिंगल पर्सन जो इजीली हमारे लिए टारगेट बन जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है, बट बट हम लोग जो है नॉर्मली वी डोंट एक्सेप्ट इट इजीली। तो यहाँ पर इट इज द आंसर, यहाँ पर आपका यही है। एंड दैट इज वाई जो ऑफिस बॉय था, ही यूज टू वेंट आउट हिज एंगर, हिज फ्रस्ट्रेशन टूवर्ड्स सुब्बू। एंड अशोकमित्रन चुपचाप सुनते थे, इसीलिए वो आकर इनको सुनाकर जाते थे कि इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ सुब्बू। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन। अब आपके पेपर में उस दिन आपको जब मैं करवा रही थी, तो आई हैड ऑलरेडी गिवन यू दिस, सुब्बू वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, इसको बताओ। और मीन्स और द सेम थिंग, और अभी नीचे आएगा, सुब्बू वॉज टेलर मेड फॉर द मूवीज। Subbu was another person. Ashokamitran is the narrator. Subbu was right hand to the owner of Gemini Studio. मतलब कि he is a very famous director, actor, सब थे वो। एंड जो अशोकमित्रन है, जो ये बात बता रहे हैं, he is a narrator of this entire episode. इस बुक के राइटर हैं वो। ही couldn't directly yell at सुब्बू, सुब्बू पे जाकर वो नहीं सुना सकते थे। वाई? क्योंकि सुब्बू वॉज नंबर 2। आप अपने बॉस को जाकर सुना सकते हो? नहीं सुना सकते हो। ये बेचारा जो ऑफिस बॉय है, ही हैड कम हियर टू चेक हिज फेट, मतलब अपने हाथ यहाँ पर, ही वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर, राइटर, लिरिसिस्ट, लेकिन वो बन नहीं पाया। लेकिन सुब्बू जो है वो बन चुका था, और सुब्बू राइट हैंड था, मतलब ही वॉज वेरी क्लोज टू द ओनर। अब भाई उससे पंगा क्यों ले सकते हैं? इसीलिए वो सुब्बू को जाकर येल नहीं करता था, ही वुड वेंट हिज फ्रस्ट्रेशन ऑन अशोकमित्र। वो सुब्बू को तो डायरेक्टली जाकर बोल नहीं सकता था ना, क्योंकि भाई नौकरी भी तो जरूरी है। लेट मी टेल यू वन थिंग स्टूडेंट्स, we will be doing right now. Let me tell you one thing, students. If you go to, मतलब अभी तो it is not, आजकल तो today 2024 में मूवी मेकिंग is completely different. Movie making is completely different. Here, every person who is in the technical field is an expert in technical field. A person who is a lyricist wants to become a lyricist. There is a complete department. There is a company. In fact, जो हम BST में कंपनी बोलते हैं ना, वो अब यहाँ पर है। अब वो सिस्टम आपका प्रोफेशनल सिस्टम है। तो अगर आप मेकअप डिपार्टमेंट बोलोगे, तो यू विल बी हैविंग पीपल हु हैव डन प्रॉपर मेकअप, मतलब कि कोर्स फ्रॉम रिनोन्ड इंस्टीट्यूट, दे वुड बी देयर।
आप पीछे अगर डांस करने वाले देखते हो तो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम शामक डावर, ऐसे जो एक्टर्स होते हैं वो होते हैं। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर एक्टर्स आपके जो मतलब कि इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे अनुपम खेर जी का है, पुणे में आपका है, वहां से आते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले तो ये सब चीजें थी ही नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल अपना घर छोड़ते थे, एंड घर छोड़कर वो लोग भाग जाते थे। और मूवी मेकिंग उन दिनों में वॉज नॉट कंसिडर्ड अ गुड प्रोफेशन। इट वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट प्रोफेशन, मतलब बिगड़े हुए लोगों के लिए। तो इसीलिए मूवी मेकिंग वॉज नॉट कंसिडर्ड एज ए रिस्पेक्टेबल, तो लोग अपने घरों से भाग जाते थे एंड दे डिड नॉट हैव एनीथिंग बैक। तो वहां जो काम मिलता था वो लोग उन दिनों में कर लेते थे। हाँ, स्लोली स्लोली दे वर ट्रेन्ड। लेकिन आजकल क्या होता है, ट्रेनिंग पहले होती है, बाद में आपका होता है। वेयर यू आर वर्किंग, यू आर अ सीए, बट यू आर वर्किंग फॉर अ मूवी इंडस्ट्री। वेयर यू आर वर्किंग, यू आर वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेट। तो आजकल दिस इज इक्वल, क्योंकि आजकल पहले ट्रेनिंग होती है, दिस हैज बिकम एन इंडस्ट्री। लेकिन उन दिनों में ये इंडस्ट्री नहीं था। तो मूवीज में जब लोग काम करने जाते थे ना, आस्क एनीवन, आस्क देवानंद, अब तो नहीं है वो, दिलीप कुमार जी, धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी ran from his home to make his career in movie। तो जिनको मिल जाता था, जिनकी मतलब कि दोज हु यूज टू हैव सम काइंड ऑफ एसोसिएशन, वो लोग बन जाते थे। आस्क अबाउट अमिताभ बच्चन जी, ही स्लेप्ट ऑन द व्हाट यू कॉल एज चेयर्स नियर बीच, एंड उसके बाद उनको महमूद जी अपने घर लेकर गए थे, और उस तरीके से मूवीज के अंदर वो आए थे। हिज फर्स्ट मूवी वॉज अ कंप्लीट फ्लॉप, साथ हिंदुस्तानी, एंड देन इट वॉज व्हाट यू कॉल एक जोक कि ही गॉट, मनमोहन देसाई जी थे शायद, someone like that, who had given him the opportunity in his movie Zanjeer, or Zanjeer changed the entire scenario of what Amitabh Bachchan ji is today. He became the angry young man, the most favorite actor, and he was one, जब वो ऑल इंडिया रेडियो गए थे इंटरव्यू देने के लिए, ही वॉज वेल लर्नड पर्सन, ही इज बीएससी। तो जब वो ऑल इंडिया रेडियो गए थे ना, यू नो, ही वॉज रेफ्यूज्ड ऑन द कंटेक्स्ट कि आपकी आवाज कितनी भारी है। ही अलोंग विथ सुनील दत्त वॉज देयर, सुनील दत्त संजय दत्त के पापा। संजय दत्त वॉज द न्यूज रीडर, सॉरी, सुनील दत्त जी वॉज द न्यूज रीडर, लेकिन अमिताभ बच्चन जी वॉज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड कि आपकी आवाज कितनी खराब है। एंड आज आप लोग देख सकते हो, अमिताभ बच्चन वॉइस इज इकोइंग ऑल अराउंड। दिस इज हाउ उन दिनों में इट वॉज अ स्ट्रगल, इट वॉज अ स्ट्रगल। सो मोस्ट ऑफ द पीपल जो अपनी मूवीज बनाने के लिए जाते थे, इफ दे डिड नॉट गेट एनीथिंग, तो वो लोग वहां जो काम मिलता था ना वो लोग वो कर लेते थे। अभी आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में। उन दिनों में ऐसा नहीं होता था। आजकल क्या, यू हैव अ करियर, इवन यू कैन बिकम, आप भी अब मतलब इफ यू आर वर्किंग समवेयर, इट माइट बी एन इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड टू मूवी मेकिंग, because now the stars, the directors, they have made it as a profession। पहले ऐसा नहीं होता था। और इसीलिए जो ऑफिस बॉय था, ही कुड नॉट गो बैक। वो बनने तो आया था हीरो, लेकिन बन गया वो मुरारी। तो हुआ क्या, उसको लगता था कि ही हैज नॉट बीन गिवन द चांस, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। सुब्बू को सारी अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन वो अपना गुस्सा सुब्बू पर जाकर नहीं उतार सकता था। तो जो अशोक मित्रन, जो उसको खाली लगता था, उसको जाकर वो अपनी बातें उस पर जो है फ्रस्ट्रेशन निकालता। राइट। अब आता नेक्स्ट, सुब्बू वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग क्या है? ही वॉज नेक्स्ट टू द ओनर ऑफ द स्टूडियो। स्टूडियो के जो ओनर थे, दैट इज एस वासन, ये उनके मतलब कि उनसे बिल्कुल नेक्स्ट था। इट मीन्स he was a kind of assistant director in that studio।
He could not have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times. For when he began his career, देखिए जो मैं आपको बता रही हूं ना, ये सारा अब आ रहा आपके पास में. There was no firmly established film producing companies or studios. उस जमाने में ऐसा नहीं होता था. Even in the matter of education, especially formal education, Subbu could not have had an appreciable lead over our boy. यहाँ पर उनके कहने का मतलब है कि in the matter of education और other things, सुब्बू जो है ऑफिस बॉय से 19 में था. मतलब he was lesser. But by virtue of being born a Brahmin, a virtue means एक blessings. He must have had the exposure to most affluent situation and people. He had the ability to look cheerful at all times and even after having a hand in flop film. He always had work for somebody. He could never do things on his own. ये आपका क्वेश्चन है फ्रॉम सीबीएसई. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सीबीएसई. ही ऑलवेज हैड अ वर्क, मतलब कि वो अपने आप तो उन्होंने कुछ नहीं किया था. ही डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ एक्सपोजर, लेकिन वो दूसरों के लिए बहुत लॉयल थे. अब क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, लेट मी राइट इट ओवर हेयर. मैं यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ इसका जो क्वेश्चन है, द वन विच इज इन सीबीएसई. इसमें आपने क्या आंसर लिखना है वो मैं बता रही हूँ. मतलब यहाँ पर उसका कहने का मतलब है दैट ही वॉज नॉट अ पर्सन हु कुड मेक एनीथिंग हिमसेल्फ, लेकिन वो जिसके लिए काम करता था, he was true loyal to them. His sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to his principles advantage. यानी कि अब जिसके लिए वो काम करता था उसके लिए, मतलब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है बच्चा, दिस इज फॉर द पर्सन फॉर whom he is working, that is the owner. यहाँ पर जो यहाँ प्रिंसिपल है, दिस इज फॉर द ओनर. मतलब वो जिसके लिए काम करता था उसके लिए वो पूरा ऑनेस्ट था. ही वॉज डेडिकेटेड. ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स. वो मूवीज के लिए बिल्कुल टेलर मेड था. टेलर मेड मतलब एग्जैक्टली फिट. एग्जैक्टली फिट. और आपको यहां से यहां तक इसका आंसर लिखना है. दिस इज द आंसर फॉर दिस. मीन्स ही वॉज very loyal, he was very creative, he was just like a tailor made for films, he was exactly fit. मतलब उनको फिल्म के लाइन से जुड़ी छोटी छोटी बातें बहुत अच्छे से समझ आती थी. दिस आई हैड गिवन यू दैट एग्जाम्पल. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. Here was a man who could be inspired but commanded. The right fights the tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do this.
मतलब प्रोड्यूसर उसको ऐसा एक उल्टा सीधा, यहाँ पर ना तो रैट कभी टिग्रिस को मार सकता है और ना ही रैट जो है वो उनके कद को देख सकता है। यहाँ पर उनके कहने का मतलब है कि एक ऐसा एडवर्स सिचुएशन अगर प्रोड्यूसर दे देगा ना, तो वो उसमें भी अपनी क्रिएटिविटी डालकर वो उसको मतलब कि उस सीन को जस्टिफाई करता। ही कुड जस्टिफाई एनी सीन विद हिज क्रिएटिविटी। Subbu would come out with four ways of the rat pouring affection on its victim's offspring. Good, but I'm not sure it is effective, the producer would say. And in a minute, Subbu would come out with 14 more alternatives. मतलब जैसे ही प्रोड्यूसर ने ये एक मतलब सीन बताया, वो उसके पास चार ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी होंगे। लेकिन अगर प्रोड्यूसर उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो वो जो है और भी, और मतलब उसके पास इतनी क्रिएटिविटी थी कि वो प्रोड्यूसर को हमेशा सेटिस्फाई कर लेता था। Film making must have been and was so easy with a man like Subbu. And if there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios in its golden years, it was Subbu. इसीलिए सुब्बू को टेलर मेड भी कहा जाता है, एंड he is also called as number 2 in Gemini Studios. Subbu more had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. मतलब वो चाहते तो अपने इन पोएम्स को लिरिक्स की तरह लिखकर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जितनी भी अपने पोएम्स को एड्रेस किया था, दैट वाज फॉर द कॉमन पीपल। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को कॉमन पीपल के लिए यूज किया था। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievement. मतलब वो मूवीज में इतने सक्सेसफुल हो गए कि जो उनके अंदर लिटरेचर वाली जो टैलेंट था ना, उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना कर देना। Also his critics felt. He composed several truly original story poems in folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel तिल्लाना मोहनम्बर। उस दिन आपको इसके बारे में मैंने बता दिया था। वैसे अगर इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियोस में मैंने सारी पिक्चर्स डाली विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एच्ड कैरेक्टर्स। बहुत ही फेमस मूवी थी। He quite successfully recreated the mood and manner of Devdasis of the 20th century. देवदासीज माने जाते हैं वो डांसर्स जो अपनी पूरे डांस को, अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट करते हैं टू द गॉड। दे डोंट मैरी, दे ओनली डेडिकेट देयर लाइफ टू द गॉड। मंदिरों में करते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज डन। Deftly etched means. Wait. But whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the main players. मतलब उन्होंने जो है एक दो मूवीज में एज अ एक्स्ट्रा आर्टिस्ट भी काम किया है। कैरेक्टर आर्टिस्ट, कैरेक्टर आर्टिस्ट कौन होते हैं? माँ बाप भाई बहन ऐसे बोलते हैं ना, उनके लिए। तो उनमें भी ही हैज बीन वेरी what you say successful. Means in this novel, the characters who were there, they all had been successfully created. Deftly etched matlab successfully created, skillfully created. He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of nears on far relations and acquaintances. Matlab, besides a good director, an actor, a poet, he was also a good person.
It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. Such a charitable and improvident मतलब benefactor, मतलब एक बहुत ही benevolent person, dayalu, and yet he had enemies. Was it because he seemed so close and intimate with the boss, or it was general demeanor that resembled a sycophant's, or his readiness to say nice things about everything? In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst thing for Subbu. तो अब यहाँ पर उसने जो इतना बताया है, उसका कहने का मतलब है सुब्बू इतना अच्छा इंसान था, इतना दयालु था, उसके घर में कितने लोग खाना खाते थे ये उसको भी नहीं पता था. ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स. लेकिन उसके बावजूद भी जो मेकअप डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय था वो उसके बारे में हमेशा गलत सोचा करता था. तो ये आपका जो है साइकोफेंट होता है, अ पर्सन हु एक्ट्स रॉन्ग टूवर्ड्स, किसी के लिए गलत सोचना. अ पर्सन हु थिंक्स रॉन्ग अबाउट, साइकोपैथ बोलते हैं ना हम लोग, तो साइकोफैंट बोलते क्यों, उसके लिए ये जो एनिमी है उसका क्यों है, उसका एनिमी वो, भाई वो तो इतना अच्छा है. तो ये जो पूरा पैराग्राफ हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है ना, इसमें अशोक मित्रन हैज कम अप विथ द थिंग्स कि सुब्बू उसके अकॉर्डिंग, टिल ही हैड नॉट रेड दैट बुक द गॉड दैट फेल्ड, उसको हमेशा यही लगा था कि सुब्बू वॉज टेलर मेड एंड सुब्बू वॉज टैलेंटेड. Subbu's success was not because he was belonging to some caste or creed. It was because of his loyalty, his creativity, his versatility. उसके पास इतने आइडियाज होते थे, एक क्वेश्चन पूछो तो he would come up with so many options. Besides, he had acted in the movie. Besides, he had acted in the movie. Besides, he had produced movies. He was a poet. He was benevolent. He was charitable. उसके बावजूद भी ऑफिस बॉय को वो हमेशा गलत इंसान लगता था. तो द फर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव रेड टिल टुडे is all about the makeup studio, where it was, why it was called as fiery misery, why it was called as an example of national integration. उसके बाद हमने पढ़ा है अबाउट द ऑफिस बॉय जो हमारा सेकंड पार्ट था, और थर्ड पार्ट था अबाउट सुब्रमण्य कोत्तमंगल सुब्रमण्यम हु वाज कॉल्ड एज सुब्बू, हु वाज अ टेलर मेड फॉर फिल्म्स. और जो मेन आपके क्वेश्चंस हैं, you can expect the in-text questions also and the questions which I have written over here. ये questions भी हैं. They are from the CBSE's question papers only. So I have taken up all those questions also along with. Right?